dive into the key elements. We'll dive into the key elements that make a great declamation. You'll learn how to use your voice, your body, and your words, and your emotions to deliver a powerful speech. This workshop consists of 2 sessions. Here's a detailed explanation of it. Today, we are holding the first session of the Declamation Workshop series, in which we are going to learn about the writing styles. Our speaker will provide in-depth explanation of how to write an impactful speech, which is going to be followed by a Q&A session. Later in the first session, the guest speaker will assign a topic for participants to write about over the course of a day. I request you all to please participate in this activity because you'll learn how to utilize the skills in a practical way through that. For the topic assigned, the participants can take help and guidance from the cabinet members of the declamation section as well. Please join me in welcoming the cabinet members of the declamation section. Laiba Jameel, who's a 4th year MBBS student. She is the Secretary Declamations for the Debates Club. And Furqan Sethi, 3rd year MBBS, who's the Deputy Secretary of the Debates Club, a declamation section of the Debates Club. They're experienced debaters and they have won a number of competitions all over Pakistan. Welcome. During the next session, some volunteers will get to present their work, followed by constructive critique, which will be beneficial for all the participants. So I think for now, this is enough for the sessions. Now, to officially begin the workshop, I'm going to invite our esteemed guest speaker to formally begin the workshop. We're honored to present Mr. Azhar Iqbal Bangash as our distinguished guest speaker. With a remarkable career in debating, he has achieved a victory in over 16 All-Pakistan and regional competitions and has served as an adjudicator in numerous prestigious contests nationwide, including KLF APDC. His exceptional oratory skills have also shown through thank you. His exceptional oratory skills have also shown through during his tenure as an anchor in PTV News and ABN News. Once again, welcome, and the floor is yours. Assalamu alaikum. I hope I'm audible. Yes, you are audible. Walaikum assalam. तमाम तारीफ़ें खुदा बुजुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बिलखुसूस शुहदाए करबला पर. Thank you so much everyone for having me right now. I'm extremely sorry I'm not at my home or my office. Rather, I'm just on my way. So I would really, I apologize in advance if you hear any background noise here या कोई थोड़ी सी inconvenience होती है. I'm actually sitting inside my car right now. That's why I cannot even open up my camera. But since I had the commitment, so I had to fulfill that. I hope that would not be a problem. All right. Thank you so much once again, specifically Laiba. Okay. Specifically Laiba, thank you so very much for having me in today's session. Thank you, Sarah, for the wonderful introduction. Without further ado, we should. All right, it's clear. Okay. So जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम जस्ट ऑन माय वे, तो मुझे नहीं पता कि सिग्नल डिस्टॉर्शन किस हद तक होगी और कितनी आपको चीज़ें समझ आएंगी और कितनी नहीं आएंगी. एनीवेज, वी शैल स्टार्ट आवर सेशन. कुछ मुझे डिस्टॉर्शन फील हो रही है. ओके, fine. So the pattern of this session is that we are going to have question and answer session by the end. उससे पहले I'll try to address a few questions जो मुझे पता चले हैं, वो उनको एड्रेस करेंगे. और उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी कंसर्न्स होते हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. एंड दिस सेशन इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ लेक्चर कि बस मैं बोलता जाऊंगा आप लोग सुनते जाएंगे. रादर आई वांट इट टू बी वेरी मच इंटरैक्टिव. You can always interact, or मतलब a good practice would be if you can, before speaking, if you want to say something, obviously, you can use that raise hand wala option यहाँ पे. I don't know if
इट्स स्टिल हियर और नॉट, तो उसमें ये होगा कि हमारा जो मतलब डिस्टॉर्शन है और जो डिस्टरबेंस है वो नहीं होगी, एंड मुझे भी पता चल जाएगा इफ समवन इज विलिंग टू से समथिंग। आप बीच में बिल्कुल मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड, तो उसके बाद आई विल डेफिनेटली लेट यू स्पीक, और जो भी आपके कंसर्न्स होंगे उसको हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसमें आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू ऑल कैन आल्सो पार्टिसिपेट। बिफोर वी स्टार्ट, मुझे ये बता दें कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन इनटू declamations or debates, like you can just raise your hand if you have been into debates ever in your life. Declamations, debates, public speaking, MUNs, parliamentaries, any of it. I just want to know so that I can know what kind of audience do I have right now. Do we have that raise hand wala option yahan pe? Can someone tell me? Yeah, we do have it. अच्छा, मैसेज में. Okay. Yeah, we can raise hand by clicking on the reactions button. Okay. All right. So till now, it's just one hand that is raised. Okay. So assuming. Okay. No, we can see a lot of other hands as well. 1, 2, 3, 4, 5. All right. So we have 35 members right now. 30. Yeah, 35, and 5 out of them have like participated ever in the debates, public speaking, and declamations. Perfect. I think we are good to go to discuss about the declamation specifically. अच्छा, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन मेक नोट्स एज वेल साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज होती है और वक्त के साथ साथ आप इन चीजों को भूलते जाते हो. I'll try to address both the languages, Urdu and English, though I've been actively participating in English language ज़्यादा, लेकिन उर्दू के अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसके अंदर कोई इतना मेजर डिफरेंस भी नहीं होता. और चूंकि आज का जो हमारा सेशन है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइटिंग अ स्पीच, तो मतलब इट्स समवट सिमिलर. ऑब्वियसली बोथ लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, दोनों की जो जजेस की एक्सपेक्टेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है, बट कुछ चीजें इसके अंदर कॉमन होती हैं जो कि आज की सेशन में हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट. सो बिफोर वी स्टार्ट, आप सबसे पहले ऑल यू नीड टू नो इज declamations are 110% different than rest of the public speaking thing. ठीक है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है, सबसे एक जिसे कहते हैं एक बेसिक फाउंडेशनल पॉइंट है, जिसको बहुत ज्यादा लोग ना समझते हैं, ना इसको वो समझना चाहते हैं. ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया है, जब मैं पार्टिसिपेट करता था तब भी, और जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की तब भी, कि बहुत सारे लोग डिक्लेमेशन कंपटीशन में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट देयर स्टाइल, their content, their delivery, everything is just not right according to the protocols of declamations. Just a minute. All right. सो ये एक बहुत बुनियादी डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है, जिसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो आज के सेशन में हम लाजिमन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है और किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस होता है ना डेक्लेमेशन में और पब्लिक स्पीकिंग में, डिबेट्स में, पार्लियामेंट्रीज में, एमयूएन्स में, एक चीज तो कॉमन है और वो है पब्लिक स्पीकिंग. यू हैव टू फेस द पब्लिक, यू हैव टू फेस द क्राउड, और फिर आपने उनसे बात करनी होती है. ठीक हो गया? तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस है. आई एम सो सॉरी गाइस, बीच में बार बार मुझे माइक ऑफ करना पड़ रहा है, बट आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा जी, तो हम ये समझ रहे थे कि डेक्लेमेशन में, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. एक चीज कॉमन है, वो है आपने ऑडियंस को कैसे फेस करना है, अपने ऑडियंस से कैसे बात करनी है, और इन सब चीजों को अपने कैसे लेकर चलना होता है. अच्छा, पब्लिक, चलो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू वी डू इन अ स्पीच कंपटीशन. स्पीच में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक होता है जेनेरिक सा, उसके ऊपर हम जेनेरिक कंटेंट लिख के, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, और बहुत ज्यादा इंटरनेशन उसके अंदर होती है, बहुत ज्यादा राइज एंड फॉल उसके अंदर होता है, वो हम लोग उसको जो है ना वहाँ जाकर डिलीवर कर देते होते हैं, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द
स्पीच सेगमेंट। डिबेट्स में क्या होता है, जो जिसको हम नॉन पार्लियामेंट्री डिबेट्स कहते हैं, उसके अंदर इट्स टू एंड फ्रो अ टॉपिक। आप या टॉपिक के फेवर में बात करते हो या आप टॉपिक के अगेंस्ट बात करते हो, यानी कि one participant comes in and speaks in favor of a topic, the other one comes in and speaks against that topic, ठीक है। and this is what we do, one by one सारे आ रहे होते हैं। और इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर मैटर करता है आपका आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग है, उसके अंदर आपने कितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कितना आपने उसका इन डेप्थ एनालिसिस दिया हुआ है, कितने आपने उसके अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कितना आपने उसके अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और कितना आप अपने पॉइंट को, अपने स्टैंस को, अपने अपनी जो आप अपना जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो उसको जस्टिफाई करने में कितना आप सक्सेसफुल हुए हो। इसके अंदर ज्यादा वेट जो होता है वो आपके आर्गुमेंट्स का होता है, आपके डिलीवरी का या बाकी चीजों का इतना ज्यादा इसके अंदर वेटेज नहीं होता है। पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डिबेट्स में हम क्या करते हैं कि उसके अंदर आपने टेक्निकल स्टाइल, एक टेक्निकल फ्लो, एक टेक्निकल प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। आपका जो जॉब रोल होता है उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टिसिपेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आर्गुमेंट्स बिल्ड करने होते हैं, केस बिल्ड करना होता है, और उसके अंदर टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं। इन पार्लियामेंट्रीज इट्स नॉट जस्ट योर कंटेंट बट द टेक्निकल फ्लो एज वेल, कि जी आप इफ यू आर द फर्स्ट स्पीकर तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप के हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डेक्लेमेशन, ठीक है। वो सब चीजें आपने करनी होती हैं। फिर पार्लियामेंट्री के अंदर फर्दर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री होती है, एशियन पार्लियामेंट्री होती है, कनेडियन स्टाइल होती है, वर्ल्ड स्कूल डिबेट कंपटीशन होता है जो स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा आजकल इन ट्रेंड है, और लाइक जितने भी एलीट स्कूल्स हैं, एलजीएस, फ्रोबेल्स, बीकन हाउस, इन सब में ये डब्ल्यूएसडीसी फॉर्मेट इज प्रीटी मच कॉमन। इनफैक्ट इसके जो है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की एक नेशनल टीम भी है डब्ल्यूएसडीसी की, जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, और डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड दैट टीम इज ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और उनके बाकायदा कैंप्स होते हैं उनके, जो है ना वो, जिस तरह एक प्रॉपर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, उसी तरह से ये एज अ टीम परफॉर्म कर रही होती है। ऑलराइट, तो डब्ल्यूएसडीसी जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन एक फॉर्मेट है जो कि पाकिस्तान में स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एमयूएंस आ जाते हैं। एमयूएंस के अंदर क्या होता है कि आपने जो है वो डिप्लोमेसी स्किल्स अपनी शोकेस करनी होती हैं, आपने अपनी उसके अंदर किस तरह से आप अपने स्टैंड्स को लेकर चल रहे हो, आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज पे कितनी स्ट्रांग होल्ड है, और आप अपने कंट्री के स्टैंड्स और नैरेटिव के बारे में क्या जानते हो और किस तरह से आप उसको पुट फॉरवर्ड करते हो, वो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। और 3 दिन आप किस तरह से लोगों को अपने पास अपने पॉइंट्स पे कायल करने की कोशिश करते हो, किस तरह से आप डिप्लोमेसी करते हो, वो सब चीजें उसके अंदर मैटर कर रही होती हैं। सो ये हमने जनरल ओवरऑल जितने डिबेट्स के दूसरे फॉर्म थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ हाउ डेक्लेमेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने तरफ से बहुत अच्छी स्पीचेस करके आ जाते हैं, बट दे डू नॉट गेट एनी पोजीशन। उसके पीछे एक बहुत बुनियादी रीजन होती है, वो ये होती है कि उन्होंने डेक्लेमेशन का जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया होता। डेक्लेमेशन इज नॉट अ स्पीच, डेक्लेमेशन इज नॉट अ डिबेट, डेक्लेमेशन इज नॉट एन एमयूएन, डेक्लेमेशन इज डेक्लेमेशन, ठीक है। डेक्लेमेशन के अंदर जो सबसे एक बुनियादी असूल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर विल डेफिनेटली डिग डीप इनटू के हम कैसे कंटेंट लिखते हैं और सारा कुछ। जो एक बुनियादी असूल होता है वो ये होता है कि डेक्लेमेशन इज नॉट अबाउट पुटिंग फॉरवर्ड स्ट्रेट सेंटेंसेस, जैसे कि आप कहते हैं कि जी कश्मीर की आजादी के लिए हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, आप ये कह सकते हैं डेक्लेमेशन में, लेकिन इस जुमले के अंदर डेप्थ नहीं है। डेक्लेमेशन इज ऑल अबाउट डेप्थ, कि आपने अपने वर्ड्स के अंदर, आपने अपने जुमलों के अंदर, आपने अपने कंटेंट के अंदर कितनी डेप्थ ऐड की है कि सुनने वाला जो है वो कोई भी काम कर रहा है, आपके पहले जुमले के बाद वो आपकी आपकी अटेंशन उस वो आपकी अटेंशन उसको ग्रैब कर ले, उसकी अटेंशन को ग्रैब कर ले। दिस इज डेक्लेमेशन, दिस इज डेप्थ, ठीक है। आप स्ट्रेट सेंटेंसेस डेक्लेमेशन में कहोगे तो कोई भी आपको अटेंटिवली नहीं सुनेगा। तो नंबर वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डेक्लेमेशन के अंदर आपने बहुत ज्यादा डेप्थ डालनी होती है, आपने इनडायरेक्ट जुमले बहुत ज्यादा कहने होते हैं। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल इन उर्दू। अब हम ये कह सकते हैं कि वक्त जो है ना वो तब्दील होता जाता है, ठीक है, और हर किसी का वक्त आता है। अब ये एक सिंपल सा जुमला अगर ये मैं कहूंगा तो ये इतना डेप्थ इसके अंदर क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन अगर साथ ही मैं ये कह दूं कि वक्त का दूसरा नाम इनकलाब है सदर अली वकार, वो इनकलाब जो सितवत व जबरूत को कुचलता हुआ नब्जे आदमियत पर आकर रुक जाता है।
ठीक है। तो अब क्या किया कि मैंने ये कहा कि वक्त का दूसरा नाम, यानी वक्त तब्दील होता है आते आने वक्त के साथ। और लेकिन उसको मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ ऐड करके उसको मैंने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। तो आपने हमेशा जो आपके उर्दू कंटेंट जब होता है डेक्लेमेशन का, उसकी जो आपकी इनिशियल 4 5 6 लाइंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी एडजुडिकेटर के लिए कि वो आपको फर्दर सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे नहमदहू व नसल्ली अला रसूल हिल करीम, तो जो एडजुडिकेटर है वो सबसे पहले वहां पे कांटा लगा देगा कि चलो जी ये तो डेक्लेमेशन से आउट हो गया। इवन आप बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स दे दो, इवन आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पुट पुट इन कर दो, आप सारा कुछ कर लो, दैट डजंट मैटर। ठीक है। तो आपने कोई बिस्मिल्लाह नहीं होती, कोई औजुबिल्लाह नहीं होती, कोई चीजें नहीं होती, वो आप दिल में पढ़ते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, यू जस्ट पुट फॉरवर्ड द सेंटेंसेस जो जिनके अंदर कोई डेप्थ होती है। ठीक हो गया। ये एक सबसे एक बुनियादी एक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप डेक्लेमेशंस के अंदर कॉमन एग्जांपल्स नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, आप ये नहीं कर सकते कि आप जिस तरह वी ऑल नो द वॉर वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, वी ऑल नो द शोहदाज, वी ऑल नो द वंस हु हैव गॉट निशान हैदर इन पाकिस्तान। अगर आप अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास और इन सब चीजों की एग्जांपल्स दोगे, तो नो वन इज गोइंग टू पे अटेंशन टू इट। व्हाई? बिकॉज़ एवरीवन हैव बीन लिसनिंग टू दीस सेंटेंस, दीस एग्जांपल्स अगेन एंड अगेन, मल्टीपल टाइम्स। हमने जिंदगी में छोटे से हम बड़ी ये जुमले जो है ना, ये एग्जांपल्स सुन सुन के हुए हैं। तो अपने डेक्लेमेशन के अंदर हमेशा हमेशा एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, वो होता है आपने यूनिक एग्जांपल्स देनी होती हैं। अब यूनिक एग्जांपल की डेफिनेशन क्या है? यूनिक एग्जांपल की डेफिनेशन ये है कि या तो वो बहुत रीसेंट एग्जांपल होनी चाहिए, या वाकया होना चाहिए, या कोई हैपनिंग होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा रिसेंट हुई हो। या दूसरी इसकी एग्जांपल ये होती है कि समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा लोगों को जिसके बारे में नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट फिडेल कास्ट्रो, दैट्स गोइंग टू ग्रैब माय अटेंशन बिकॉज नॉट एवरी पर्सन नोज अबाउट हिम। इफ यू टॉक अबाउट जॉर्डानो ब्रूनो, that is going to grab my attention because not everyone knows about him. If you talk about first industrial revolution, second industrial revolution, third industrial revolution, fourth industrial revolution, that is going to grab my, जैसे I'll give you an example अब। ओके, जैसे आप लोग, आप सबको, आपने किस किस को याद है न्यूजीलैंड में एक मस्जिद पे अटैक हुआ था? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? काफी पहले की बात है, मेरे ख्याल में 2 3 4 साल तो हो गए हैं इसको। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट? ओके, जस्ट थ्री थ्री फोर पीपल, दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। um like in order to be a good debater, public speaker, या किसी भी तरह से आप जो है वो होना चाहते हैं, उसके लिए तो you have to be very well aware of the करंट अफेयर्स ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास इम्प्रॉम्प्टू डेक्लेमेशंस आ जाती हैं जिसके अंदर आपको टॉपिक ऑन स्पॉट दिया जाता है एंड उसके ऊपर आपने कंटेंट बनाना होता है। सो मेरे ख्याल से यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ ऑल द स्टफ एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द हैपनिंग्स दैट इज इन द होल एंटायर वर्ल्ड। उन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा खैर, जो न्यूजीलैंड के इंसिडेंट है उसकी हम बात कर रहे थे। अब आई टेल यू कि हुआ ये था एक बार, इट वाज द हाईटेक टेक्सला जहाँ पे आई वाज पार्टिसिपेटिंग, और मेरे मतलब एक बड़ा तगड़ा कंपेटिटर हुआ करता था, जफर वसीम। जहाँ पे भी मैं और वो होते थे, बस या वो आगे होता था या मैं आगे होता था, और बस हमारा ना एक आपस में चलता रहता था, हमारी एक से कहते हैं राइवलरी चल रही थी। तो वो ये कि अब हमारा इनिशियल राउंड हुआ और हमने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो जिस दिन हमारा इनिशियल राउंड था उसी दिन ये न्यूजीलैंड का वाकया भी हो गया ना, न्यूजीलैंड में जो मस्जिद पे अटैक हुआ, सारा कुछ वो हो गया। अब फाइनल राउंड के लिए मैंने तगड़ी स्पीच प्रिपेयर की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, और आई एम प्रीटी श्योर कि जी बस ये तो कंटेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई प्रिपेयर्ड, और आई एम जस्ट गोइंग टू नेल इट, और कल जो है ना वो मेडल मैंने जीत जाना है। हुआ ये कि जो ये मेरा राइवल था जफर वसीम, इसने क्या किया, इसने वो जो न्यूजीलैंड इंसिडेंट हुआ था ना, उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, यानी नॉट ऑल द कंटेंट वाज बेस्ड ऑन इट, बट उसका जो इनिशियल जो पहला राइज था, वो उसने क्या किया, उसने सारे के सारे की जो बेसिस थी ना वो न्यूजीलैंड वाले इंसिडेंट पे कर दी, और उसने जाके वो कंटेंट डिलीवर कर दिया। एंड जजेस को इतना पसंद आया वो कंटेंट, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि यार कल ये वाकया हुआ है, आज आके आप उस वाकये के ऊपर इतनी अच्छी तकरीर कर रहे हो, उसको आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके अंदर आप इतनी डेप्थ डाल रहे हो। सो ही गॉट द बेस्ट स्पीकर अगेन एंड आई वाज लाइक व्हाट मैन, इतनी मेहनत, इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी। सो व्हाट वाज द डिफरेंस इन माय स्पीच एंड हिज? उसने वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब किया, उसने वो रीसेंट एक चीज को डिस्कस किया जिसके बारे में बहुत सारे स्पीकर्स का ध्यान भी नहीं किया होगा। ठीक है। तो ये कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से यू कैन मेक द डिफरेंस। लाइक बीइंग एन एजुकेटर,
अब जैसे अब मैं भी कर रहा हूँ, तो एट टाइम्स इट गेट्स रियली हार्ड एंड डिफिकल्ट टू एक्चुअली डिसाइड कि यार मैं किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे दो अच्छे स्पीकर्स के दरमियान कुछ ना कुछ निकालूं। तो मुझे ना वो कोई रीजन चाहिए होती है। अब दिस इज अ वेरी गुड रीजन कि मैं कहूँ कि यार एक बंदा है जिसने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा एक रिसेंट वाकये पे कंटेंट कर दिया, लेट्स गिव हिम यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट। और दूसरा जो उसने बहुत अच्छी तकरीर किया, लेकिन चूंकि उसका कंटेंट थोड़ा सा इस तरह से था, तो उसको हम पीछे कर दें। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है, एक बहुत अच्छी ट्रिक और टेक्निक हो सकती है। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक और मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि देखें, व्हेन यू आर इन अ डिक्लेमेशन कंपटीशन, तो हर जो एडजुडिकेटर होता है उसका माइंडसेट, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है जिसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बिल्कुल भी कतन ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये पत्थर पे लकीर हैं एंड दे आर लाइक ये बस आप लोग करेंगे तो इट विल अश्योर यू द बेस्ट स्पीकर और इस तरह कुछ। हर एजुकेटर की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, लेकिन ये कुछ की एलिमेंट्स हैं, कुछ बुनियादी असूल हैं जिसकी बेसिस सारे एजुकेटर्स, टेक्निकल एजुकेटर्स को पता होती हैं, और वो इसी बेसिस पे आपके कंटेंट को जज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हमने अभी क्या चीजें डिस्कस की, हमने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं कि एक आपका जो कंटेंट है वो उसके अंदर डेप्थ होनी चाहिए, स्ट्रेट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे जुमले नहीं होने चाहिए। अगर आप सीधे सीधे जुमले बोलेंगे तो उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और नंबर दो हमने क्या डिस्कस किया कि उसके अंदर अगर आपने कोई एग्जांपल्स कोट करनी है तो आपने उसके अंदर जो है ना वो यूनिक एग्जांपल्स या कुछ ऐसी एग्जांपल्स कोट करनी है जो कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और थोड़ी फिलोसॉफिकल एग्जांपल्स हो सकती हैं, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है। यार एम आई ऑडिबल? हेलो। Sir, you are. Yes, sir. ऑलराइट, मेरे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है Yes, कि यू आर म्यूट। No, sir, you are audible. sir. ऑलराइट, ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, तो हमने ये दो चीजें इसके अंदर बुनियादी असूल हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए व्हेनेवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डेक्लेमेशन कंपटीशन, बी इट उर्दू और इंग्लिश। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपने जहन में रख के अपना कंटेंट लिखना है, तैयार करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारा जो डेक्लेमेशन है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हम अपने डेक्लेमेशन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन तो हम ऑब्वियसली बाद में बात करेंगे। हम अपने कंटेंट को लिखें कैसे, तैयार कैसे करें। ठीक है। मीन वाइल इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग ना अपना हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एंड पे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव द क्यूए सेशन। बट मीन वाइल आप जो है ना बीच बीच में अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हो। और दूसरा आई रिक्वेस्ट द मॉडरेटर कि मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हम थोड़ी देर बाद जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो वन बाय वन आप भी वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई कैन गिव द बेस्ट पॉसिबल explanation and answer to those questions so that everyone can understand what we are discussing in today's session. और जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आती या मैं बहुत ज्यादा तेज बोलने लग जाऊं या बहुत ज्यादा आवाज स्लो हो जाए या कटने लग जाए तो भी मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द, जैसे कह सकते हैं, टेम्पलेट या फॉर्मेट ऑफ द डेक्लेमेशन। जनरली डिक्लेमेशन जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। ठीक है। ये एक ऐसे का भी एक रूल होता है, खैर आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन ऐसे और वो सारा कुछ, जिसमें होता है कि ये आपने पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देनी होती है, फिर मिडिल बॉडी होती है और फिर आपने कंक्लूजन देना होता है, सारा कुछ। डेक्लेमेशन में आपने क्या करना होता है कि डेक्लेमेशन को भी आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करना होता है। ठीक है। इसका जो पहला हिस्सा होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेक्लेमेशन, दैट इज, इसको हम उर्दू में आम भाषा में, आम जबान में, इट इज नॉट ऑलवेज द केस बट टू मेक इट अट्रैक्टिव, टू गेन अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, आप क्या करो कि जो इसका पहला पार्ट है उसको ना आप मंजर निगारी, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, ये वाली जो टेक्निक है ना आप इसके अंदर वो अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल आप किसी इंसिडेंट को कोट कर दो उसके अंदर, और उस इंसिडेंट को आप ऐसे कोट करो एज इफ आप उसकी इतने डिटेल्स बता दो एक सीरीज में कि जो बंदा आपको सुन रहा है ना वो उसको इमेजिन करने लग जाए। ठीक है। और इसकी स्टोरी टेलिंग वाला रूल है इसके अंदर, जितनी आप इसके अंदर डिटेल ऐड करते जाते हो ना उतना लोग इसको इजीली रिलेट करते जाते हैं और उतना अपने जहन में इसको विजुअलाइज करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल के अब अगर मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊं और मैं आपको कहूं कि एक घर है, वहां पे एक तख्त है, उस तख्त के ऊपर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, उनकी सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल हैं, हाथ में उन्होंने छड़ी पकड़ी हुई है, काले रंग का उनका तख्त है, सामने तीन नौजवान बैठे हुए हैं जिनके जो है ना वो जिनकी एक की दाढ़ी है, एक की सिर्फ मूछें हैं, उन्होंने भी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। तो अब जो मैं डिटेल्स इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ तो आपके जहन में उनका जो स्केच है वो बनना शुरू हो गया है। ठीक है। अब
ऑन द अदर साइड अगर मैं कह दूं एक बुजुर्ग है, तख्त पे बैठा हुआ है और वो ये बातें कर रहा है, तो आपको कैसे चलो यार कोई होगा, बट व्हेन आई एम एडिंग डिटेल्स टू इट, तो आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो, आप उसको जो है ना अपने जहन में उसकी एक पिक्चर बनाते जा रहे हो। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता है ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेक्लेमेशन, कि जब आप कोई किसी इंसिडेंट्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या किसी वाक्य के बारे में आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, किसी जगह के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो आप उसकी डिटेल्स ऐड करके एक मंजर निगारी वाला जो एक चीज है ना, वो आप उसके अंदर सामने ले आते हो, विच एक्चुअली क्रिएट्स अ डिफरेंस, और लोगों के अटेंशन को वो ग्रैब कर लेता होता है। बट इनिशियल आपके जो 3 4 5 सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। तो पहला पोर्शन जो है ना, वो आप एक अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि उसको आप किसी पर्सनालिटी, किसी वाक्य, या किसी जगह, या किसी भी चीज के लिए आप उसको आप डेडिकेट का वो टर्म यूज कर सकते हो, उसको डेडिकेट कर दो, और उसके ऊपर उसको कर दो जो आपके टॉपिक के साथ रिलेटेबल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है अबाउट फ्रीडम, ठीक है, या आपका टॉपिक है अबाउट ह्यूमन राइट्स, या इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक है, जस्ट Sir, you're not audible. We cannot hear you. या एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir, you're audible now. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, तो हमने कहा कि जो हमारा जो पहला पोर्शन होता है डेक्लेमेशन का, एक अच्छी प्रैक्टिस उसकी ये हो सकती है कि हम उसको पिक्चराइज करें, उसमें मंजर निगारी का एलिमेंट हम उसके अंदर ऐड करते जाएं। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ कि जी वो एक कंटेंट था दैट वाज रिलेटेड टू वाक़या करबला, जिसमें ये है कि रात का तीसरा पहर, नहरे फुरात खरामा खरामा बह रही है, वक्त का इमाम सरदार चिराग बुझाकर ये कह रहा है कि जो जाना चाहता है चला जाए, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या क्या कर रहे हैं कि हम उस वाक्य को पिक्चराइज कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम और डिटेल्स ऐड कर करके एक पूरा हम एक इसका जो है ना वो जिसे कहते हैं, हम एक राइज उसका बना लेंगे। और आई कैन अश्योर यू कि अगर आपका पहला जो पोर्शन है जिसमें आप पिक्चराइजेशन कर रहे हो, मंजर निगारी कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर अच्छी डिटेल्स ऐड करते हो, तो दैट कैन गेट यू अटेंशन ऑफ ऑल द ऑडियंस। ये मैं आपको इस बात की 100% एश्योरिटी दे रहा हूँ, चाहे आप अच्छा प्रेजेंट करो ना करो। उसकी वजह क्या है, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, लाइक आई एम कोचिंग द किड्स एज वेल, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, और इसके ऊपर मैं बहुत फर्मली मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आप जब पिक्चराइजेशन करते हो, स्टोरी टेलिंग करते हो, किसी को कोई वाकया बताते हो, तो आपको अटेंशन मिलती है, चाहे अगला बंदा जितना मर्जी ये कोशिश कर ले कि वो आपको नहीं सुनना चाह रहा, या वो आपको तंग करना चाह रहा है, वो उसकी आप उसकी टेंशन ग्रैब कर लेते हो, और जितना आप उसको इमोशनल बना देते हो, दैट एड्स वैल्यू टू इट। तो एक क्या करना होता है, आपने पिक्चराइजेशन और मंजर निगारी करनी होती है। दूसरा इसके अंदर जो होता है ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वही होता है कि आपने इसको इतना इमोशनल बनाना होता है, इतना इमोशनल बनाना होता है कि जो आपको सुनने वाला बंदा है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। दैट शुड गिव गूज बम्स टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट। और वो आप कैसे करते हो, डिटेल्स ऐड करके, इमोशंस ऐड करके। ठीक है, तो ये एक इसकी सेकंड टेक्निक होती है। और तीसरा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट और एस्पेक्ट होता है ना, वही होता है कि आपने इसके अंदर जो है ना वो एक 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 सीरीज लेकर चलनी होती है। आपने एक जो है ना इसकी एक स्ट्रक्चर लेकर चलना होता है। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक लम्हे पे जो है ना वो बात करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी कह रहे हो कि जी जंग शुरू हो गई है, और फिर थोड़ा सा आगे चल के आप जंग से पहले के वाकयात बयान करना शुरू कर दो, फिर चल के आप जंग के बाद के। नहीं, एक स्ट्रक्चर और तसलसल आपकी तकरीर में होना चाहिए। आप बिल्कुल बेसिक और बुनियादी चीज से स्टार्ट करते हो। किस चीज से स्टार्ट करते हो? द सन वॉज ब्लैक ऑन द डे, द eclipse of colors, darkness shrouded the soft and soothing face of the earth, and all of a sudden a mother of a kid brought her son to the furious camel race। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आप एक मंजर शुरू करते हो एक दिन के उससे, कि अब कैसा दिख रहा था, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। ठीक है, वहां से आप शुरू करते हो, और करते 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 आप उस मंजर को वहां तक ले जाते हो कि जहाँ पे उसकी वो पीक होती है, जहाँ पे उसका उस वाक्य का, या उस शख्सियत का, या उस चीज की महराज होती है, जहाँ पे ना मतलब
वो फुल अपने कहते हैं कैपेसिटी फुल ब्लूम में आपको नजर आने लग जाता होता है। बेसिक से शुरू करते हो, वहां तक आप उसको ले जाते हो, और इसके इस दौरान आप जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्स ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल आई गिव अनदर एग्जांपल के देयर इज अ कंटेंट ऑन कैप्टन महराज मोहम्मद शहीद, कैप्टन महराज मोहम्मद सफी शहीद। तो उसका कंटेंट क्या है? अ यंग इनोसेंट बॉय ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ सोल्जर वन डे, ऑल ही वांटेड वाज martyrdom. While leaving his home for the battlefield, he kissed his mother's hand and asked her to pray for his glory. It's not an easy thing to do, ladies and gentlemen. It takes courage. It takes courage to stand firm in your trenches, but it takes nerves of steel for a wife to wait for a husband to come wrapped in green flag. It takes courage to charge an enemy, but it takes even more courage for a son to see his father dying in the battlefield. All right. So you add emotions and details. अब ये तो मैं आपको जाहिर है मुझे बिल्कुल कंटेंट एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने उसको स्टार्ट किया बिल्कुल एक छोटे बच्चे से। एक छोटा बच्चा पैदा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसका एक ड्रीम है। फिर उसके अंदर ये भी था कि व्हेन ही पास हिज मैट्रिकुलेशंस हिज एफएससी, तो उसको जो था वो शौक, ही टॉप्ड द स्कूल एंड कॉलेज एंड he could have gotten admission in any university but he preferred to join military, और ये वो करते कराते 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 एंड पे आप कहाँ पे पहुंचते हो? उसकी शहादत पे, कि द डे व्हेन ही वाज ऑन इन द बैटलफील्ड वो क्या कर रहा था, हाउ वाज ही चार्जिंग द एनिमी, कैसे वो उनसे लड़ा और कैसे शहीद हुआ, फिर उसका जनाजा घर आया, तो उसकी माँ ने कैसे उसको सलूट किया। तो फिर उसकी माँ को आप वहां पे खड़े होकर कहते हो कि लेट्स सल्यूट द करेजियस मदर ऑफ कैप्टन महराज मोहम्मद सफी शहीद। शुरू में आप कैप्टन महराज मोहम्मद सफी का नहीं बता रहे, लोग तजस्सुस में हैं कि यार ये बंदा किस बंदे की बात हो रही है, ये कौन है इतना करेजियस बंदा है। एंडिंग लाइन आपकी होती है कि दिस इज कैप्टन मेराज मोहम्मद सफी शहीद, तो एवरीवन इज लाइक ओ माय गॉड दैट पर्सनालिटी, ये करेज, ये जज्बा, ये सारा कुछ। ठीक है, तो गूज बम्प्स, इमोशंस, डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड करते जाते हो। ये आपका होता है पहला पोर्शन आपके डेक्लेमेशन का, जो कि नॉर्मली जो स्पीच की टाइमिंग होती है डेक्लेमेशन की वो 4 to 6 मिनट्स की होती है। पहला जो आपका राइज होता है ये तकरीबन 2 से ढाई मिनट का आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कंटेंट आप शुरू में बनाते हो वो 2 से ढाई मिनट का कंटेंट इज एनफ। सेकंड पोर्शन, सेकंड पोर्शन आपकी जो डेक्लेमेशन का होता है वो होती है एग्जांपल्स। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप एग्जांपल्स कोट करते हो, यानी ये तो आपने एक वाकया कोट कर दिया ना, उससे रिलेटेड आपने बता दिया कि जी ये इस तरह से हुआ और ये सारा कुछ। फिर आप उसके उसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल्स देते जाते हो, और एग्जांपल का मतलब ये नहीं होता कि आप कह दो जी वन एग्जांपल इज अरफा करीम, सेकंड एग्जांपल इज अली मोइन नवाजिश, थर्ड एग्जांपल इज फलाना टिमकाना। ये एग्जांपल नहीं होती। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अरफा करीम तो उसकी अरफा करीम की थोड़ी सी आप कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दो, थोड़ी सी डिटेल्स भी दे दो। फिर इफ यू टॉकिंग अबाउट अली मोइन नवाजिश तो अली मोइन नवाजिश की भी थोड़ी सी डिटेल दे दो, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि व्हाई आर यू कोटिंग हिज एग्जांपल, व्हाट्स स्पेशल इन हिम। ठीक है, 5 से 6 7 एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ अगर आप उसका अच्छा एनालिसिस दे सकते हो। तो ये इसके अंदर अच्छा एलिमेंट होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का ये वाला भी पोर्शन होता है, यानी 2 से ढाई मिनट का आपका इनिशियल पोर्शन हो गया, 1.5 से 2 मिनट का आपका ये वाला पोर्शन हो गया, तो आपकी जो स्पीच है वो 4 से 4.5 मिनट की हो जाती है। ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड पोर्शन ऑफ द स्पीच। थर्ड पोर्शन में आपने क्या करना होता है कि आपने शुरू में बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली, आपने एग्जांपल्स कोट कर दिए, आपने वाकयात बता दिए। एंड पे आप अपने ऑडियंस को यू गिव अ रे ऑफ होप कि ठीक है, आपने शुरू में चाहे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एक इशू को डिस्कस कर लिया, और आपने कह दिया कि यार पाकिस्तान तो इंतहाई बेकार और घटिया तरीन मुल्क है जहां पे हम रह रहे हैं, बट व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, व्हाट्स द एक्शन प्लान दैट यू हैव, व्हाट आर द गुड थॉट्स दैट आर इन योर माइंड, जिस पे आप अपनी तकरीर को एंड करते हो। ठीक है, तो आपको जो एंडिंग पैराग्राफ होता है उसके अंदर आपने कुछ थोड़ी सी उम्मीद देनी होती है, कुछ आपने उसके अंदर जो है ना वो मोटिवेशनल बातें करनी होती हैं। वो उससे आपका जो है ना कंटेंट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है कि आप सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हो। आपने इशू डिस्कस कर लिया, आपने सोल्यूशन डिस्कस कर लिया, आपने एग्जांपल्स डिस्कस कर ली, अब आप एक्शन प्लान डिस्कस कर रहे हो। आप जो है ना वो एक सुनने वाले को एक उम्मीद दे रहे हो कि ठीक है जो भी हो रहा है होने दो, दिस इज व्हाट आई सी कमिंग फोर्थ इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल we say we have seen the courage of Zainab ibn Ali bint Ali in the battlefield of Karbala. So if Zainab can speak up, why can't you? We have seen the courage of Imam Hussein. Imam Hussein can die for the glory of this religion. Why can't you? All right, इस तरह का ना थोड़ा बहुत आप उसको लिंक कर देते हो किसी भी चीज से, और आप एक मोटिवेशनल अपना एक स्क्रिप्ट बना लेते हो which is generally of 30 seconds to 1 minute। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो 5 से 5.5 मिनट का जो कंटेंट होता है वो आप तैयार कर लेते होते हो। और जब आपका टाइम लिमिट 4 से 6 मिनट का है तो आपने ये कोशिश करनी होती है कि आप अपने जो कंटेंट है उसको आप लिमिट कर दो 5 मिनट तक ही।
ठीक है, 5 मिनट का कंटेंट का फायदा ये होता है कि नॉर्मली व्हेन यू आर ऑन स्टेज, तो अक्सर नर्वसनेस में आप बहुत ज्यादा तेज स्पीड में अपना कंटेंट डिलीवर कर देते होते हो। तो ये होता है कि 5 मिनट वाला जो कंटेंट है वो 4 साढ़े 4 मिनट में आ जाता है। और कभी कभार उसका ये होता है कि आपका कंटेंट चूंकि बहुत अच्छा होता है, तो आपका ऑडियंस रिस्पॉन्ड इतना अच्छा कर रही होती है कि बीच में आपके पॉजेज आ रहे होते हैं, तो आपका जो 5 मिनट का कंटेंट है वो 6 मिनट पे चला जाता है। तो या 4 मिनट का या 6 मिनट का रखना जो है वो रिस्की है। 4 मिनट का आप रखो और आप बहुत ज्यादा जल्दी कर दोगे, तो आपका जो टाइम है वो नहीं पूरा होगा एंड यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड। अगर आप 6 मिनट का रखते हो और आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कर रही है, तो आपको 6 मिनट से ऊपर चले जाओगे, यू लूज योर मार्क्स। ठीक है, तो आइडियल जो होता है इस तरह की सिनेरियो में, वो मिडिल पॉइंट होता है। 5 मिनट का कंटेंट इज एनफ। फर्स्ट बेल इज रैंक, सेकंड बेल से पहले पहले आप अपना कंटेंट फिनिश कर देते होते हो। तो ये एक प्रॉपर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो एक डेक्लेमेशन को डेक्लेमेशन बनाता है। ठीक है, आपने देखा। अच्छा, और इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर मैटर नहीं करती। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक्स इसके अंदर मैटर नहीं करते। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज इसके अंदर मैटर नहीं करती। आप उस नॉलेज को, उस एग्जाम्पल को, उस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है ना वो कंसिडर नहीं करना कि यार मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इन द सेंस कि मैं बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल बातें करूंगा कि 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग हंगर, 30% ऑफ द वुमेन इन पाकिस्तान आर अनएम्प्लॉयड, 40% ऑफ दैट डजंट मैटर। मेरे लिए बीइंग एन एजुकेटर, मेरे लिए डेक्लेमेशन में चीज मैटर नहीं करती। हाँ, पार्लियामेंट्रीज में, डिबेट्स में मेरे लिए चीज मैटर करती है, क्योंकि वहां पे अपने अपने स्टैंस को, अपने नैरेटिव को अपने प्रूव करवाना होता है। डेक्लेमेशन में यू कैन अग्री और डिसएग्री टू द टॉपिक, और यू कैन स्टे न्यूट्रल, और यू कैन अग्री एंड डिसएग्री विद द टॉपिक। आप कर सकते हो, बट आपने अपने अल्फाज से, अपने जुमलों से आपने डिफरेंस क्रिएट करना होता है। स्टैटिस्टिक्स और ये वाली जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या नॉलेज है, ये देने की जरूरत आपको नहीं होती। आर वी क्लियर यहां तक? अब अगर यहां तक कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कर लें। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने वो कैची लाइंस और वो कैची कंटेंट निकालना कहां से होता है, या जो मैं करता था पर्सनली वो क्या था। ओके, आई विल सी द रेज्ड हैंड्स। अगर किसी को बात करनी है या कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड। यस, उजैर खान नियाज़ी, आई कैन सी योर हैंड रेज्ड। यू कैन गो अहेड विद इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने मेंशन किया है कि कौन सी चीज़ें हमने मेंशन करनी है, कौन सी नहीं करनी। आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ, उर्दू डिबेट्स में हम पोइट्री या किसी पर्सनैलिटी को मेंशन कर सकते हैं, गुड पॉलिटिकल क्वेश्चन। या? अब आई आंसर आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक तो इसके अंदर सबसे बेसिक असूल ये होता है कि आपने किसी भी शख्स का नाम लेके ना तो उसकी आपने तारीफ करनी है और ना आपने उसके खिलाफ बात करनी है। आपने किसी शख्सियत का नाम अगर ले लिया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। ये स्ट्रेट अवे रूल है डिक्लेमेशंस में। आपने नवाज शरीफ का नाम ले लिया, यू डिस्क्वालिफाइड। आपने इमरान खान का नाम ले लिया, यू डिस्क्वालिफाइड। इनडायरेक्टली आप यू कैन टॉक ऑन एनीथिंग यू वांट टू, बट स्पेसिफिकली आप किसी बंदे का नाम नहीं ले सकते। ये चीज आपने जहन में रखनी है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन है ना, जहां तक कोटेशंस या पोइट्री, अच्छा नॉर्मली मैं पर्सनली जो है ना वो, अच्छा डेक्लेमेशन में तो, इंग्लिश डेक्लेमेशन में तो कोटेशंस नहीं होती हैं। ठीक है, आप ऐड कर दो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कर दो, बट वो बहुत कम होनी चाहिए। एक मैक्सिमम कोटेशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि बीइंग एन एजुकेटर फिर मैं देख रहा हूँ कि यार ये आप कोटेशन पे कोटेशंस बोली जा रहे हो, तो व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन इन दिस कंटेंट? ये तो किसी और की बातें हैं ना, किसी और के जुमले हैं। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है इसके अंदर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोटेशंस आपने ऐड नहीं करनी होती। जहां तक पोइट्री की बात है, पोइट्री की भी ना एक अच्छी अप्रोच है। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो हाँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लिश में जो है ना पोएट्रीज को डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उर्दू में शायरी की क्या इसमें सीन होता है। अब इतना ये जो है ना वो एडवांस हो गया डेक्लेमेशन, कि इसके अंदर ना अब बहुत सारे लोग जो है ना वो जेनेरिक शायरी ऐड ही नहीं करते। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग जो बहुत प्रोफेशनल डेक्लेमर्स हैं या बहुत प्रोफेशनल डेक्लेमेशन करते हैं, वो उस टॉपिक को लेके उसके ऊपर पोएट्री स्पेशली किसी अपने शायर दोस्त से करवाते हैं, एंड दैट इज नोन एज गिरा बंदवाना। ठीक है, आपने कभी कभार या ये टर्म उर्दू में सुनी होगी। कोई डेक्लेमेशन वाला अच्छा स्पीकर है वो ये कह रहा होगा कि यार ये मैंने गिरा बंदवाई है किसी शायर से।
तो वो क्या करता है, वो कहता है कि यार ये स्टैंजा पकड़ो, ये शेर मिसरा पकड़ो, इसके ऊपर मुझे पूरी एक नज्म लिख के दो जो आपके कंटेंट के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो ये एक एडवांस्ड लेवल है आप अपनी पोइट्री के अंदर जो आप सॉरी अपने डिक्लेमेशन में जो आप पोइट्री ऐड कर पाते हो। बट अदर देन दैट आप इनकलाबी टाइप ऑफ पोइट्री होती है, या जो इनकलाबी शोरा होते हैं, या जो जिनको आप कह सकते हो कि जो थोड़े से वेल नोन पोइट्स होते हैं, उनकी आप शायरी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो शायरी भी बहुत ज्यादा कॉमन शायरी नहीं होनी चाहिए। ऐसी शायरी होनी चाहिए जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात ना करते हो, ठीक है। ये भी एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो शायरी जो है वो आपकी स्पीच का बहुत ज्यादा पोर्शन कवर ना करे। इट शुड बी मैक्सिमम 10 to 15 seconds ऑफ योर स्पीच, या 20 seconds, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आप 4 से 6 मिसरे तक की जो पोइट्री है उसको आप अपनी इस तकरीर के अंदर ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर अब उसको पोइट्री को डिलीवर कैसे करना है वो मैं आपको, जब हम हाउ टू डिलीवर डेक्लेमेशन वाले सेशन करेंगे उसके अंदर बताऊंगा कि पोइट्री आपने ऐड तो कर दी है, बट पोइट्री को क्या आपने गा गा के बोलना है या आपने स्ट्रेट जुमलों में बोलना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप योर क्वेश्चन इज नाउ, योर कंसर्न इज नाउ क्लियर। Yes, sir. Thank you. Oh my God, we have Laiba Khuram as well. Okay, so ladies and gentlemen, you've got a wonderful humorous speaker among you. Laiba is from Namal and she has been a phenomenal speaker. I've adjudicated her multiple times, and she's got wonderful skills in humorous category when it comes to English humorous speeches, and she's been winning a lot of laurels as well. So um, you people are lucky that she's among you right now. Anyways, Laiba will touch the humorous category later on, though I'm not an expert in the humorous category. I haven't ever done a humorous speech in my life. I tried once, but unfortunately, I couldn't do it. So that moment, I had to give up on the humorous category. If you people have any other question or concern, please go ahead. Sir, Umair Bukhari has a question. He has posted it in chat. वही पूछ रहे हैं कि Yeah. नंबर ज्यादा मैटर करती है और उसकी एग्जांपल्स की डिटेल्स इन सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच। नहीं देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैटर नहीं करती। आप उस एग्जाम्पल की एनालिसिस कैसे कर रहे हो, आप उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, आप मुझे कन्विंस बीइंग एन एडजुडिकेटर या बीइंग एन ऑडियंस कर रहे हो कि हाउ इज दैट एग्जाम्पल रेलेवेंट टू योर टॉपिक एंड व्हाई आर यू कोटिंग दैट एग्जाम्पल, ठीक है। उसके अंदर ऐसी खास बात क्या है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हो तो मुझे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इट शुड बी एटलीस्ट 3 4 5 एग्जांपल्स, ताकि मुझे भी तो पता लगे ना कि यार वाकई में आप जो बात कर रहे हो उसके अंदर कोई दम है, तो आप 3 4 5 चीजें जो है उसको कोट कर पा रहे हो। बट सिर्फ एग्जाम्पल देना इज नॉट इनफ, उसका एनालिसिस देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर फिर मीटिंग जो है सर शायद 10 मिनट्स में ओवर हो जाए ना, तो काइंडली फिर जो है ना ठीक इफ है, इट गोज आउट तो इसी लिंक से दोबारा रिजॉइन कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताएं। ऑलराइट, आई थिंक वी आर गुड टू गो। सही है। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जनरल एक फॉर्मेट डिक्लेरेशन का क्या होना चाहिए। आई एम अगेन गिविंग अ डिस्क्लेमर कि हर एजुडिकेटर की सोच, हर एजुडिकेटर का माइंडसेट, हर एजुडिकेटर की एक्सपेक्टेशंस एक जैसी नहीं होती हैं। मे बी एन एजुडिकेटर इज अनदर एजुडिकेटर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, मे बी उसकी सोच मेरी सोच के साथ ना मिले, और ये अक्सर होता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। पर्सनली मेरे साथ होता है कि मेरा बहुत दिल कर रहा होता है किसी की स्पीच टेक्निकली भी बहुत अच्छी होती है, प्रेजेंट भी बहुत अच्छी की होती है, सारा कुछ उसके साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं उसको पोजीशन देना भी चाह रहा होता हूँ तो भी मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ के एजुकेटर्स होते हैं उनको वो स्पीच अच्छी नहीं लग रही होती, उनको किसी और की स्पीच अच्छी लग रही होती है। इट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स। द वंस हु हैव बीन इनटू डिक्लेमेशंस उनको पता होगा कि एजुकेटर कह रहा होता है यार आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, ये था वो था फलाना ढिमकाना, और दूसरा आपको कहता है कि यार आपकी स्पीच के अंदर ये इशू से दैट्स व्हाई यू कुडंट गेट एनी पोजीशन। तो ये एक चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, बट जनरल गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। If someone is doing it for the first time, what is advice for them? देखो, every master was once beginner. My advice is to never give up. Like I can personally tell you, और ये मतलब बहुत सारी आपने चीजें देखी होंगी कि बहुत सारे लोग जो है ना फिर वो इस तरह की एग्जांपल्स कोट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनकी फेलियर्स और वो सब चीजें होती हैं, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रू फैक्चुअल स्टोरी ऑफ माय ओन पर्सनल जर्नी।
लाइक सीन ये है कि मतलब मुझे ना था बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन सब चीजों का, एंड आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ गाय जो दूसरे बंदे से बात भी नहीं करता होता था। लाइक माय पेरेंट्स वुड से कि तुम्हें हम जहाँ ले जाते थे बस तुम वहाँ पे बैठे रहते थे, तुम शरारतें भी नहीं करते थे, अपने साथ के बच्चों से बातें भी नहीं करते थे। आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट दीज डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग, दे दिस हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ इनटू समथिंग एल्स। तो सीन ये है कि आई कैन रिमेंबर माय वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन आर्मी बर्न हॉल कॉलेज। वहाँ पे पीडीसी होता है। All right. So when I first participated in the declamation in Army Burn Hall College, Ahmedabad, that was my very first declamation back in 2016, I believe. ठीक है। तो उस वक्त आप लोगों का एक सीनियर है दानिश। ही वाज द प्रेसिडेंट देयर इन आर्मी बर्न हॉल कॉलेज की जो लिटरेरी सोसाइटी थी या डिबेटिंग सोसाइटी थी उसका। तो अच्छा, वो मैंने जब फर्स्ट से मैंने पार्टिसिपेट किया था तो आई पार्टिसिपेटेड इन उर्दू डेक्लेमेशन, एंड आई लिटरली, मेरी स्पीच मेरे टीचर ने लिखी थी और मैं वो तकरीर जो है वो मैं भूल के आ गया था। लिटरली माय लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, और मुझे कोई अजीब ही कोई तूफान सा बरपा था मेरे जहन में कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैं स्टेज पे गया एंड आई जस्ट लाइक 4 से 5 मिनट का टाइम था, मैं एक 1.5 मिनट की स्पीच करके नीचे आ गया था। आई फॉरगॉट माई स्पीच एंड दैट वाज अ horrendous एक्सपीरियंस फॉर मी। मतलब मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट उसका मतलब ये नहीं था कि वो मेरे साथ हो गया एक्सपीरियंस तो बस मैं फिर ये सब चीजें छोड़ दूं। फिर मतलब वहां से ना वो एक जिसे कहते हैं कि एक मोटिवेशन भी मेरे अंदर आई कि यार I couldn't do it for the first time. I definitely can do better in the second time, in the third time, in the fourth time. तो देखो, फर्स्ट टाइम तो आप कभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी जो पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं और पहली बार ही वो कोई पोजीशन निकाल के चले जाते हैं। तो मैं फिर बड़ा इस पे डिसहार्ट हो गया। फिर ना मैं अपने सीनियर्स से और जो मेरे साथ करते होते थे उनसे मैं पूछता था, यार आप लोगों की पहली पोजीशन कब आई थी, कितने कॉम्पिटिशन्स के बाद? वो कहते थे यार 2 के बाद, 3 के बाद। तो मुझे लगता था चलो यार पहली बारी में सारी कोई भी नहीं जीत पाता। फॉर द सेकंड टाइम इट वाज क्वाइट बेटर, फॉर द थर्ड टाइम इट वाज वेरी इजी। एंड अब 2-3 बारी के बाद आप चौथी बार जब पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आपको मसला ही कोई नहीं होता, फिर यू आर यूज्ड टू इट। ठीक है। बाकी जो आपका वो फियर होता है, जो चीजें होती हैं वो तो ऑब्वियसली होती हैं, वो तो आप 100 बार भी पार्टिसिपेट करोगे तो फॉर अ मोमेंट, फॉर अ सेकंड आपके दिल में वो खौफ और वो डर तो जरूर होगा। इवन इफ आई एम आस्क्ड टू स्पीक ऑन द स्टेज फॉर अ व्हाइल, मेरे दिल में भी वो जो है ना वो बटरफ्लाईज आ रहे होते हैं कि यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। बट वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, 2-3-4 सेकंड्स के लिए होता है। तो अगर दुनिया में कोई बंदा ये क्लेम करता है कि यार मुझे स्टेज पे जाने का कोई फियर नहीं है, जरा सा भी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। थोड़ा बहुत फियर कहीं ना कहीं जरूर होता है, लेकिन आप उस फियर को कंट्रोल करना होता है। और जब आप 2 से 3 बार पार्टिसिपेट करते हो, इसकी मैं आपको पर्सनल एश्योरिटी दे रहा हूँ कि चौथी मरतबा आप बोलते हुए आपको इतना खास मसला नहीं होगा। सिर्फ आपने वो 2 से 3 बार जो है ना वो हिम्मत करके चला जाके बोलना होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय एडवाइस इज नेवर गिव अप, इवन इफ यू फॉरगेट योर स्पीच, इवन इफ यू कैन नॉट डू वेल इन द फर्स्ट टाइम, नो वन डज इट। आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। इसकी मैं आपको पर्सनल एश्योरिटी और गारंटी दे रहा हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो आई कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपने आके मुझे बताना है कि यार तुमने कहा था कि तीसरी चौथी बार तुम अच्छा करोगे, मैंने अच्छा नहीं किया, तो फिर मैं आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई और क्वेश्चन है? मैं 2-3 सेकंड के लिए देख लेता हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन है, नहीं तो फिर मैं आपको जनरल इस पे कंटेंट पे बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद वी कैन हैव अ Q&A सेशन, जो कि मुझे लगता है कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, एंड वी कैन सम अप आवर टुडेज सेशन। खैर मुझे लगता है कि देयर आर नो मोर क्वेश्चंस राइट नाउ। अच्छा, अब हम आते हैं कि यार हमने डिस्कस तो कर लिया कि कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। अब सर कंटेंट के लिए सर जी सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, लेकिन आई थिंक वी शुड एंड दिस न्यू सेशन में ज्वाइन करके आप जो है ना कंटिन्यू कर लें, बिकॉज इसमें फिर जो है ना रह जाएगा सर। इट्स जस्ट 3 मिनट्स। चलें, सही है। ठीक है, ठीक है। बिफोर वी लीव आई कैन टेक वन क्वेश्चन ऑफ रजाक, जी ही इज जी। रेजिंग हिज हैंड। जी रजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माय क्वेश्चन मे बी थोड़ा सा डम बट मैं क्यूरियस था कि आपसे पूछूं। सर जब आप पहली बार जाते हैं स्टेज पे तो सर आपके माइंड में क्या होता है? जो ऑडियंस बैठी होती है 100 से 150 के दरमियान, तो आपके माइंड हम्म। में क्या होता है कि मैंने कैसे बोलना है? एंड लाइक उस वक्त आपका माइंडसेट क्या होता है? यार सीन ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे होते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि दुनिया भर के जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं ना, बस ये आपको देख रहे हैं, इनकी सारी अटेंशन आपकी तरफ है। आपके मुंह से एक भी लफ्ज गलत निकल गया तो इन्होंने जो है ना वो तूफान बर्पा कर देना है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
90% ऑफ द अवाम, उनके जहन में ना अपने ख्यालात दौड़ रहे होते हैं, वो आपको सुन ही नहीं रहे होते हैं। वो जो 10% आपको सुन रहे होते हैं ना, वो भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। तो हमारे जहन में ये चल रहा होता है कि यार बस ये सारा हम ही देख रहे हैं, अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो ये होगा। While you are speaking on the stage, you know what you have to deliver, what you have to say. जो सुन रहा है ना, उसको ये नहीं पता कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। ठीक है, इवन अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना, तो वो उनको ये लग रहा है कि आप सही बोल रहे हो। तो आपने सिर्फ अपने जहन में और माइंडसेट में ये बना के जाना होता है कि यार दे आर ऑलरेडी नॉट लिसनिंग टू यू। वो अपने ख्यालों में है, वो अपने सोचों में गुम है। आप लोग मतलब देख लेना, हम क्लास में बैठ के लेक्चर्स ले रहे होते हैं, तो हमारे ध्यान किस तरफ होता है? टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचर को लग रहा होता है कि ये बच्चा तो मैं सुन रहा है, लेकिन हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है नॉर्मली। तो यही ऑडियंस के साथ भी हो रहा होता है कि वो आपको अटेंटिवली नहीं सुन रहे होते हैं, अनलेस आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर लें, दैट्स अनदर थिंग। बट 90% ऑफ द पीपल आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, वो अपने ख्यालात में गुम होते हैं। ठीक हो गया? तो आप जो है ना वो इसमें कोई एज सच कंसर्न नहीं है कि यार आप जहन बना के जाओगे यार अगर मैंने कुछ गलत कर दिया। और ट्रस्ट मी, लाइक मैंने बहुत बार देखा है कि स्टेज पे ना ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती है। इफ यू फॉरगेट योर कंटेंट, दे विल क्लैप फॉर यू, दे विल गिव यू टाइम, और आपसे वो कहेंगे कि यार यू टेक योर टाइम एंड यू डू इट अगेन। एंड इफ यू डू इट अगेन एंड इफ यू लाइक आप उसको कवर कर लेते हो, तो यू कम बैक एज अ वॉरियर, नॉट एज अ लूजर। बट अगर आप उसको छोड़ के आ जाते हो, तो ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इट फील्स लाइक यू आर अ लूजर, बट एक्चुअली यू आर नॉट। बट आपको जहन में ये ख्याल आ रहा होता है। लेकिन आप उसको कवर करते हो और आप अपनी तकरीर पूरी करके आते हो, तो यू कम बैक एज अ वॉरियर, बिकॉज ऑलरेडी यू आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू। ऑडियंस में बैठ के आपको सुन रहा है, आप स्टेज पे चले गए हो, यू हैव ऑलरेडी शोन द करेज एंड डिटर्मिनेशन, तो दैट ऑलरेडी हैज मेड द डिफरेंस। ठीक है? तो पहली बार ना आपको ये जहन में आपके ख्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन आपने माइंड सेट ये बना के जाना है कि नो वन इज लिसनिंग टू यू, और आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है क्या सही है गलत है, ऑडियंस को नहीं पता। सो आई होप दिस हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर आई लव योर आंसर, थैंक यू। परफेक्ट। चलो फिर we'll join back the session again. ठीक है? जी सर, जस्ट एंडिंग इट और रीजॉइन कर लें सब। काइंडली रीजॉइन, इसी इसी लिंक से दोबारा रीजॉइन कर लें एवरीवन प्लीज। Okay, है ना? I'll answer your question in the session. ठीक है? हम all right. Any other question? ठीक है, मेरे ख्याल से would not have any other question right now. सही हो गया? तो ये सीन है। अच्छा, बाकी इसके अंदर वो खैर वो डिलीवरी वाले सेक्शन में भी मैं आपको बता दूंगा, बट उसमें उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इंग्लिश में और उर्दू में, ये इन दोनों लैंग्वेजेस में बहुत मैटर करती है। तो इंग्लिश में आपको ना एक्सेंट पे कोई भी जज नहीं करता, और इंग्लिश में जो अपने एक्सेंट रखना होता है ना, वो अपने प्योर जो हमारा पाकिस्तानी या इंडियन एक्सेंट है वो रखना होता है। अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट रखते हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप फिर ब्रिटिश अमेरिकन इन दोनों को मिक्स कर रहे हो और पाकिस्तानी भी बीच में आ रहा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। या तो प्योर ब्रिटिश रखो, या प्योर अमेरिकन रखो, या प्योर पाकिस्तानी रखो। बट प्रेफर्ड क्या है? जो हम लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या जो हमारे एशियन लोगों का जो एक्सेंट है, वो प्रेफर्ड है। आप वो रखो तो उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अगर आप ये थोड़ा सा उसके तरह मुंह टेढ़ा करके और वो सब चीजें करके आप बोलोगे, तो थोड़ा सा ना फेक फेक सा लग रहा होता है। इफ यू फेक द एक्सेंट, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपका जो नेचुरल है जिस तरह से भी है, वो आप जो है ना उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो आपको एक्सेंट पे कोई भी जज नहीं कर रहा, प्रोनाउंसिएशन पे आपको कर रहा है। ठीक है? ये उर्दू में भी है, उर्दू में भी तलफ़ुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग, मैं खुद भी पख्तून हूँ और हम सारे पठान हैं। हमारा मसला ये है कि हमारा जो है वो नॉट सारे, आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग आपसे पख्तून नहीं भी होंगे, बट टेक्निकली स्पीकिंग कंसिडरिंग केपीके और खैबर मेडिकल कॉलेज, तो मसला ये होता है कि हमारे वो लहजे में, तलफ़ुज़ में जो है ना, वो काकी के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, या हम जो है वो एक लफ्ज़ को सही से अदा नहीं कर पा रहे होते हैं। हम फुवारे को पुआरा कह रहे होते हैं, और पौधे को हम पौधा कह रहे होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं इन बिल्ट, तो इसको ऊपर हमें काम करने की जरूरत होती है। इसके बेसिस पे हम जज हो रहे होते हैं। ठीक है? तो क्योंकि उर्दू हमारी कॉमन लैंग्वेज भी है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उर्दू को आप टाइम दो और उसको आप प्रॉपरली समझ के आप प्रेजेंट करो। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपने फोकस जरूर करना है, बी इट इन इंग्लिश और इन उर्दू। ऑलराइट, ठीक है। बाकी इसकी जो डिस्कशन है वो हम करेंगे इन आवर डिलीवरी वाला सेक्शन। अच्छा जी, अब आते हैं कि यार हम कंटेंट की हेल्प कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा यार, इसका सीन ये है कि ये ना बड़ा एक वेग क्वेश्चन है, और इसके ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनके पास कंटेंट आता है बुक रीडिंग से, दे रीड अ लॉट ऑफ बुक्स,
हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं या बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके जहन में आ जाती होती है यार। और द मोर यू रीड, द मोर का जो होराइजन है, आपका जो विजन है, वो ब्रॉडन होता चला जाता है, आपके पास आइडियाज आने लग जाते हैं, आप चीज़ों को जो है ना वो और ज़्यादा इन डेप्थ समझने लग जाते हो, तो वो तो एक चीज़ होती है। बट नॉर्मली क्या होता है उर्दू डेक्लेमेशन में, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे लोग जो है ना ये अखबारों में कॉलम्स जो लिखे होते हैं ना, जो डिफरेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं, वो उन कॉलम्स में से जुमले उठाते हैं जो उनको लगता है ना कि ज़रा डेप्थ वाले जुमले हैं, ज़रा उन्होंने उसके अंदर फैंसी उर्दू यूज़ की हुई है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं। और क्योंकि कॉलम्स में नॉर्मली इसी तरह होता है कि आप जो है ना वो सिंपल और स्ट्रेट वर्ड्स नहीं होते, बल्कि वो इनडायरेक्टली किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उसको किसी और चीज़ से के साथ मिला के या लिंक करके। तो ये एक अच्छा एक तरीकाकार हो सकता है कि आप ना उर्दू न्यूज़पेपर्स के जो कॉलम्स हैं, उसको रीड करें, उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस और ऐसे कुछ चीज़ें निकालें। एज़ वर्ड टू वर्ड आप नहीं उसको कोट कर सकते हो ऑब्वियसली, बट आप उसके अंदर अपनी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन थोड़ी बहुत करके, तो आप उसको आगे आके प्रेज़ेंट कर सकते हो, एंड दैट कैन क्रिएट अ गुड डिफरेंस। और इंग्लिश में नॉर्मली मैं क्या करता था, लाइक एक चोर दरवाज़ा है। वो ये है कि लाइक आई आई यूज्ड टू फॉलो अ लॉट ऑफ इंग्लिश पेजेस जो लोकली पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं। उसमें एक था वो, आई फॉरगॉट इट्स नेम, इट वाज ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान और ये वो। तो अक्सर उसके ऊपर ना पोस्ट आ रही होती थी किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो उन्होंने बड़ी उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस किया होता था, बड़ा उसके अंदर इमोशनल टच दिया होता था, बहुत सारे ना फैंसी वर्ड्स यूज़ किए होते थे। नॉट फैंसी, सिंपल इंग्लिश होती थी, बट उसके अंदर इमोशंस और डेप्थ होता था। तो आई वुड टेक हेल्प फ्रॉम दोज़ सेंटेंसेस। मैं वहाँ से उनको उठा के उसमें से थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उनको लाके अपनी उसके अंदर क्रिएटिविटी जो मेरे ज़हन में चल रही होती थी वो ऐड करके, तो मैं वहाँ से हेल्प लेके और यहाँ पे आके मैं उसको डाल के डिलीवर कर देता होता था। तो ये कुछ इसके ना वो जिसे कहते हैं, यू कैन कॉल इट जुगाड़ इन सिंपल वर्ड्स, उसके तहत आप अपने कंटेंट को कर सकते हैं। अदर देन दैट, रिसर्च, रिसर्च मोर, और ज़्यादा रिसर्च, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और जो आपका कंटेंट है, वो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक और इसके अंदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये होता है, जो मैं भी करता था, कि यार जो आपके मतलब जो आपके साथ स्पीकर्स हैं ना, जिनकी आपको स्पीचेज़ अच्छी लगती हैं या जो आप आके पोज़ीशंस ले लेते होते हैं, उनकी स्पीचेज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। कुछ एक आध रिकॉर्ड भी कर ली करें, सो दैट एट योर फ्री टाइम आप उसको सुनें और आप देखें कि यार इसने कंटेंट कैसा बनाया है। स्पेशली जो जीसीयू लाहौर के होते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के होते हैं, ये जो पंजाब का सर्कल है, लाहौर साइड का, ये बहुत एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कल है। और ये इनके जो कंटेंट होते हैं और इनके जो जुमले होते हैं और इनके जो वो होते हैं, वो बेहतरीन होते हैं। तो आप ना कोशिश किया करें कि इनकी रिकॉर्ड करके यू सीक हेल्प फ्रॉम देम एज वेल, कि यार वो किस तरह कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एक आध जुमला आपको मैं बताता हूँ, वो आप जरा सुनिएगा, और आप लोगों को शायद लगे भी कि कितना इसके अंदर डेप्थ है। अभी वो स्पीकर फ्रॉम जीसीयू लाहौर, जुहेब आलम, ये उसके उसके सेंटेंसेस हैं। ही स्टार्टेड ऑफ विद, ख़वातीनो हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। और उसने कहा ना एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं, एवरीवन वाज लाइक क्या ऐलान करने लगा भाई? एंड ही इज लाइक, ख़वातीनो हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। खुदा की बसाई हुई इस सरजमीन पर आज इंसानियत का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिडेंट एंड हेयर। अब लोगों ने कहा अच्छा चलो ये जुमला इसने कह दिया, अगला क्या कहता है? आगे सुने जुमला। आगे वो कह रहा है कि तमाम हशरातुल अर्ज, जन्नात, चरिंद परिंद और कीड़े मकोड़ों से गुजारिश है कि नमाज जनाजा में शिरकत फरमाकर ज्यादा से ज्यादा इबरत हासिल करें। जब उसने कहा ना ज्यादा से ज्यादा इबरत हासिल करें, ही गॉट द स्टैंडिंग ओवेशन ऑन दिस वन सेंटेंस। यानी इंसानियत इंतकाल कर चुकी है, कोई इंसान बाकी नहीं बचा। उसने कहा कि यार कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज आके इबरत हासिल करो कि तुम्हारे ही अंजाम ना हो जाए जो इंसानों का अंजाम हो। ठीक है। तो इस तरह की ना आप डेप्थ उसके अंदर ऐड करते जाते हो, आप उसके अंदर चीजों को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करते जाते हो, और फिर आगे उसने उसको लिंक किया आगे फर्दर उन सब चीजों के साथ। तो इस तरह से आप जो है ना अपना कंटेंट बेहतरीन बना सकते हो। तो अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, कि आपने जो है वो जेनेरिक कंटेंट नहीं बनाना, स्ट्रेट सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, उसके अंदर डेप्थ होनी चाहिए, उसके अंदर फिलोसफी होनी चाहिए, उसके अंदर जो है ना वो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स होने चाहिए, सो दैट सुनने वाला जो है उसकी अटेंशन आपके पास कायम रहे। तो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस, गो अहेड। बाकी मेरे ख्याल से तो जो लिखने वाला पोर्शन है या हाउ टू राइट द स्पीच,
हाउ टू राइट द कंटेंट या हाउ टू प्रिपेयर द कंटेंट, वो तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लिया है। हाँ सर, ये हमारे पास फॉर्म में जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू। ये जो हम पूछ रहे हैं कि इज द डिबेटिंग आर्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप्स, या फिर इज इट एन इनबिल्ट थिंग और वी कैन डेवलप इट विद टाइम? यार दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, आंसर टू इट इज, मैंने अभी जिस तरह अपनी एग्जांपल कोट किया ना कि आई वाज लिटरली अ वेरी शाय एंड वेरी इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। मुझे भी हैरत होती है अपने आप को देख के कि यार आई वाज द पर्सन जो इतना इंट्रोवर्ट था कि यार जो किसी दूसरे बंदे से ना बात करना भी लगता था मेरी जिंदगी अजाब में आ जाएगी। लेकिन इस पब्लिक स्पीकिंग ने और इस सब चीजों ने ना इतना मुझे चेंज किया कि आई एंडेड अप बीइंग अ न्यूज़ एंकर वेयर आई was facing the whole world. I mean, it's just the camera in front of me, but I'm not sure who is watching me from where. इसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, और इसकी मैं आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूँ। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहना उसमें यही बात बताता हूँ कि यार these debates and public speaking, these are the life changing things। ये हम लोग इसको बहुत ज्यादा लाइट ले रहे होते हैं कि यार चलो एक फन एक्टिविटी है, एक साइड गिग है, चलो कर लेते हैं, शुगल मेरा लगा रहेगा। बट हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि हमारी जिंदगी को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर देती है। मैं आपको श्योरिटी के साथ ये बात कर सकता हूँ कि आप हमेशा जो आपका डिबेटर है, जो आपका ओरेटर है, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑडियंस। आपका जो डिबेटिंग सर्कल है उसकी जो जो गुफ्तगू होती है, उसकी जो गपशप होती है, वो बड़ी फिलोसफिकल होती है। वो एक अलग ब्रीड होती है, एक अलग कम्युनिटी बन जाती है आपकी। आप एक अलग तरह से चीजें सोचने लग जाते हो। आपके अंदर का जो क्रिएटिव बंदा होता है वो जाग जाता है। आप चीजों को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो। अभी आपको एक पर्सपेक्टिव नजर आ रहा होता है, जब आप ये स्पीचेस वगैरह करते हो, डेक्लेमेशन और ये सब चीजें, आपका पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो जाता है कि आई कैन नॉट इवन टेल यू कि कितना उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये कोई इनबिल्ट क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारे लोगों के अंदर होती है कि आप जो है वो पैदा ही, यानी कि आप बड़े ही ऐसे इन्वायरमेंट में होते हो जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया होता है, जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा बचपन से अपॉर्चुनिटीज ली होती हैं, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो। तो ये ऐसा नहीं है, इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट, एंड एनीवन कैन लर्न इट। और ये एक लाइफ चेंजिंग चीज है। मैं आई एम टेलिंग यू अगेन, आई कैंट स्ट्रेस मोर ऑन इट। मेरे लिए इट वाज लाइफ चेंजिंग थिंग। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि यार मैं आई एंड अप बीइंग अ न्यूज़ एंकर। हाँ, मुझे शौक बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीजें होंगी। एंड व्हाट वाज बेसिस ऑफ इट? दीज डिबेट्स इन पब्लिक स्पीकिंग। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ 20 years। नो वन इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी हैज एवर गॉटन द अपॉर्चुनिटी कि 20 साल की एज में पीटीवी न्यूज पे आप खबरें बैठ के पढ़ रहे हो। आई वाज इन माय फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, लाइक सेकंड ईयर ऑफ माय थर्ड ईयर ऑफ माय डिग्री, बैचलर्स, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। इट वाज द पीक कोविड टाइम। तो यार मेरे लिए तो पर्सनली, मैं तो अगर अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी बताऊंगा तो मेरे लिए तो ये एक लाइफ चेंजिंग चीज है। एंड मैं वो बंदा था जो बिल्कुल इन चीजों से भागता था। लेकिन मैंने इसको, आई पुश्ड माई सेल्फ और आई टेस्टेड माई नर्व्स, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा किया। मैंने पहले 3-4 कॉम्पिटिशन में शिकस्त देखी है, मैं नहीं जीत सका। मैं अपनी स्पीच हार्डली कंप्लीट करता था, बट आई केप्ट द स्पिरिट अलाइव। आई केप्ट ऑन पार्टिसिपेटिंग। एंड देन द टाइम केम व्हेन जहाँ मैं जाता था पोजीशन लेके आता था। पोजीशन के बगैर मैं आता नहीं था, और जहाँ पे नहीं आती थी पोजीशन, वहां पे मुझे हैरत होती थी, और मैं जजेस के साथ बैठ के लाइक आई वुड आर्ग्यू विद देम कि व्हाट वाज द रीजन। तो मुझे जब जस्टिफाई करते थे तो मुझे समझ आता था चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो या, इट्स एन आर्ट, इट्स अ स्किल, यू कैन लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। बट ये जो स्टेज होती है ना, जो आपकी यूनिवर्सिटी की होती है या स्कूल कॉलेज की होती है, दिस इज द बेस्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो, और आगे जाके आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है वो ये हेल्पफुल हो सकता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज इन बिल्ट, यू कैन ऑलवेज लर्न इट। बाकी यार मेरे पास ना काफी क्वेश्चनर्स आए थे। इफ आई डोंट नो इफ लाइबा इज हियर, या जो भी मॉडरेटर हैं, आप लोग अगर उनको रीड आउट करना चाहो साथ हाँ साथ, तो ये सर, है कि हम वी कैन। सर वो क्वेश्चंस मोस्टली आपने आंसर कर लिए। जिनका नहीं आंसर था वो मैंने जबरदस्त। दो आपसे पूछ लिए सर। मोस्टली आपकी टॉक में वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर अप हो रहे थे, बिकॉज परफेक्ट मोस्ट ऑफ परफेक्ट। देम वर रिलेटेड टू दीज। एक क्वेश्चन है सर जो आपकी रिटन पार्ट के साथ नहीं बल्कि स्पीच पार्ट के साथ है ना सर, स्पीकिंग पार्ट के साथ। हम्म। दैट इज अबाउट वो टोन, मतलब हाउ कैन वी चेंज आवर टोन रिलेटेड टू द कंटेंट वी हैव रिटन। तो आई हाँ गेस यार, वो हम ना, हम स्पीकिंग डिलीवरी में डिस्कस करेंगे, और जी। इनफैक्ट उसमें ना मैं कोशिश करूंगा कि आई टेक टाइम, और मैं आप लोगों के सामने ना कुछ वीडियोस भी प्ले करूंगा
जो मेरे फेवरेट स्पीकर्स थे इंग्लिश के भी और उर्दू के भी, कि हाउ दे वुड यूज टू डिलीवर द स्पीच, और मैं कैसे उनसे इंस्पायर होता था। तो वो एक चीज़ बेनिफिशियल होगी, उससे आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बिकॉज मैं पर्सनली उनको आइडियलाइज करके सुनता था। वन वाज अब्दुल्ला मोहसिन फ्रॉम जीसीयू लाहौर, ही वाज द इंग्लिश स्पीकर। और उर्दू में इट वाज अरमगान आरिफ फ्रॉम एफएमएच लाहौर। ये दोनों अपने टाइम के बहुत, बल्कि अरमगान आरिफ ने तो केएमसी में भी पार्टिसिपेट किया था, ही गॉट द बेस्ट स्पीकर जब मैंने जिस साल पार्टिसिपेट किया था केएमसी में। और अरमगान आरिफ जितने इमोशंस ऐड करता था अपनी स्पीच के अंदर, यू मतलब आप सोच भी नहीं सकते। केएमसी जैसी ऑडियंस जो किसी को बोले नहीं देती, आई रिमेम्बर उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था केएमसी में ऑन हिज कंटेंट। दोस्त ने किसी और से लिखवाया था, बट दैट वाज वंडरफुल। अजान, यू हैव रेज्ड योर हैंड, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन। Yeah, I have a question. Like the first question is, writing of content, is it good to ask someone to write for you, or like it's better to have your own ideas on the manuscript? And the second question is about the mode of delivery. Is it good to read it from the manuscript or the scribed form, or from page, or from mobile screen or something? Or is it good to read with your memory, or like through memory? How to deliver it? Thank you. अच्छा चलो, I'll try to answer both the questions. As far as the written content is concerned, यार देखो, मैं तो कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा, ना मैं कभी मशवरा दूंगा, ना कभी मैं इस चीज के बारे में सोच सकता हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि यार आप अपनी स्पीच किसी और से लिखवाओ। बट इट इज अ फैक्ट, और मैंने पर्सनली अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस चीज को खासकर लाहौर सर्किट में जो बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, लाइक केएमसी का कंपटीशन भी वो बड़ा कंपटीशन कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट्स द ओनली एपीटीसी इन द केपी के। पहले, अब तो खैर वो भी इकरा वाले भी करवाते हैं सारा कुछ, बट पायनियर इसका केएमसी ही है। और अब तो खैर वो किम्स वालों ने भी करवाया। बट उसको तो इस तरह के जो कॉम्पिटिशन है ना, इसके लिए वो लोग बाकायदा वहां पे स्पीचेस लिखवाते हैं। आई नो द पीपल एज वेल। इमरान फिरोज, ही वाज उर्दू लेक्चरर इन जीसीयू लाहौर एंड अ वेरी रिफाइंड स्पीकर ऑफ हिज टाइम। देन जीएम शाह वो लिख के देता था। देन वाज अदनान मोहसिन, देन इट वाज अदनान फारूक। तो जितने बड़े बड़े स्पीकर्स थे ना हमारे टाइम की, ये जोहेब आलम, कफील राना, इवन अरबगान आरिफ जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, वो तो बताता था कि उसने पैसे दे के अपना कंटेंट लिखवाया है। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत जबरदस्त जबरदस्त कंटेंट लिखे देते हैं। बट स्पेसिफिकली ये लोग तब करते हैं व्हेन दे हैव टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन जहाँ पे इनको कैश प्राइज भी मिलना होता है। सो इनका ये होता है कि यार चलो अच्छा कंटेंट लिखेंगे, कैश प्राइज लेके विल जस्ट पे देम एज वेल, और हम अपना भी एक रिकॉर्ड भी अपना सेट कर लेंगे। दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस हैपनिंग, बट आई विल नेवर इनकरेज दैट। आप खुद लिखें, यू कैन राइट इट far better than any other person. आप शुरू में चलो, फर्स्ट टाइम you won't be able to write good content, for the second time you will be able to write very good content. तो आप खुद लिखें, खुद ही इसको आप प्रेजेंट करें, खुद ही आप डिलीवर करें, क्योंकि आप किसी और का कंटेंट बोलेंगे तो आपको इंटरनली भी वो एक गिल्ट फील होना चाहिए कि दिस इज नॉट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, दिस इज नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम माई सेल्फ। मैं किसी और को बोल, किसी और के इमोशंस, किसी और के जज्बात, किसी और के ख्यालात को मैं आके यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्यों कर रहा हूँ मैं? व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दैट? क्या मजबूरी है मेरी? जब मैं अपने ख्यालात, अपने तस्वुरात, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इस चीज को लेके नहीं प्रेजेंट कर सकता, तो मुझे जरूरत ही नहीं है फिर बोलने की। फिर मैं आराम से चुप करके बैठ जाता हूँ। तो ये एक पर्सनल मेरा एक है कि यार आप जब स्टेज पे आ रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना ट्रैवल करके आ रहे हो, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज जो है ना, आप अपने अपने ख्यालात और थॉट्स को आप आगे प्रेजेंट करो, एंड जस्ट डू नॉट copy the content from anywhere. And as far as reading it from paper or from the manuscript or from the mobile phone, this is highly, highly, highly discouraged, and it leads to disqualification. So you always have to memorize your content. Yeah, you can always take pointers. आप एक छोटे से पेज पे अपने हाथ पे पॉइंट जरूर लिख सकते हो, आप पॉइंट देख के बोल सकते हो, बट you can never ever read it from a page or a paper or manuscript or mobile phone. It will lead to disqualification. That's very important. Gio, there, if you want to ask any question. Sir, I have some questions related to delivery portion, but I'll definitely ask them in the next session. यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर कि जो कंटेंट और वे ऑफ डिलीवरी है, मतलब जजमेंट हम्म। जो होती है उसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता होगा मार्किंग का। सर उसमें कंटेंट हाँ, ऑफ वे ऑफ डिलीवरी का रेशो कितना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, दैट वाज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जो आपका कंटेंट होता है ना, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लाइक आई गिव एन एग्जांपल। इफ टोटल मार्क्स आर 50, तो उसमें से जो 20 मार्क्स होते हैं दैट आर फॉर कंटेंट, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स आर फॉर डिलीवरी, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स आर फॉर प्रोनाउंसिएशन, और 5 मार्क्स और 10 मार्क्स आर फॉर gestures, emotions, body language,
इसका होता है, 5 और 10 मार्क्स आर फॉर कॉन्फिडेंस और या ऑडियंस रिस्पॉन्स इसका होता है। तो इस तरह से मार्किंग जो है ना वो डिवाइड हुई होती है, बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द एडजुडिकेटर्स। हर एडजुडिकेटर की अपनी मर्जी होती है कि वो क्या करता है, बट ये एक बात तय है कि जो कंटेंट के मार्क्स होते हैं वो हर दूसरी कैटेगरी से ज्यादा होते हैं और इवन डबल होते हैं। अगर डिलीवरी के 10-15 मार्क्स हैं तो कंटेंट के 20 या 25 या 30 मार्क्स होंगे। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डेक्लेमेशन में। एज आई टोल्ड यू, डेक्लेमेशन में कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, बहुत ज्यादा वो होता है, तो कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं किसी भी कंपटीशन में। Thank you, sir. हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? I guess नहीं है? that's it for today, so more questions. परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त। चलें यार, आई होप दैट वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल, और आप लोगों को ज़रूर कुछ आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे, सीखने को मिला होगा। मैं आप लोगों को एक दो टॉपिक्स भी बता देता हूँ इन इंग्लिश एज वेल एज इन उर्दू, जिस पे आप लोग जो है वो कोशिश कर सकते हो कंटेंट लिखने की, और नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। और उसको मैं देख भी लूंगा कि उस पर जो सजेशंस होंगी, जो होगा वो भी मैं आप लोगों को उस पर ज़रूर दे सकता हूँ। अच्छा, इसमें ना एक और वेरी क्विक टिप, वो ये है कि आप कोई भी चीज कोड कर रहे हो ना, तो आप अपने जहन में उसको सोचना शुरू कर दो कि यार आपके जहन में वो चीज कैसे आ रही है, पिक्चराइज करना शुरू कर दो, और उसी को आप स्टार्ट में इनिशियली लिख दो। यानी फॉर एग्जांपल यू आर कोटिंग वाकया करबला फॉर एनी टॉपिक, तो आप ना वाकया करबला को अपने जहन में सोचना शुरू कर दो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सिंपल वर्ड्स में उसको लिख दो। जब आपने लिख लिया ना, नाउ ऐड डेप्थ इनटू इट। उसके लिए आप यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एज वेल, कि यार अब उसको मैंने उसके अंदर मैंने डेप्थ कैसे ऐड करनी है, उसको मैंने और कैसे बेहतर बनाना है, और कैसे उसको मैंने डिटेल्स ऐड करनी है। तो पहले आप अपने रॉ थॉट्स लिखो, फिर उसको आप रिफाइन करो। और ये पहली बार लिखने से कभी भी अच्छा नहीं होगा या ठीक नहीं होगा, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट देन देयर विल बी अ स्टेज जहाँ पे आप इतने प्रो हो जाओगे कि उसके बाद फिर आप अखबार में कॉलम्स लिखोगे और आपको शौक डेवलप हो जाएगा। बल्कि इनफैक्ट मैंने देखा पर्सनली कि बहुत सारे जो डिबेटर्स हैं ना, उर्दू डिबेटर्स खास तौर पे, लाइक 90% ऑफ देम, या तो दे एंड अप बीइंग पोएट्स। कफील राना की एग्जांपल है, जीएम शाह की एग्जांपल है, और ये बड़े ये बाकी अली जरियन वगैरह की एग्जांपल है, दे वर ऑल डिबेटर्स इन देयर लाइफ। तो या तो आप एक बहुत बड़े शायर बनते हो, या आप जो है ना अखबार में कॉलम लिखना शुरू कर देते हो। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। अगर आप लोगों के सर्कल में कोई सीनियर डिबेटर है, तो मोस्टली दे आर इनटू राइटिंग कॉलम्स फॉर द न्यूज़पेपर्स, और दे बिकम पोएट्स। क्योंकि आपका वो जो क्रिएटिव लेवल होता है ना, जो आपके अंदर छुपा होता है, वो अनलीश हो जाता है। फिर आप किसी के पकड़ाई में नहीं आते, और आप जो है ना फिर आप उसको यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो, और आप उसको फिर फर्दर एनहांस करते हो। तो इसका इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। सो या दैट्स व्हाट आई हैव टू से। बट इन फैक्ट दिस वाज क्वाइट astonishing as well। मैंने अपने मीडिया करियर में बहुत ज्यादा देखे हैं कि जितने बड़े बड़े एंकर्स मैंने देखे हैं, मेजोरिटी ऑफ देम वर डिबेटर्स एट देयर टाइम। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इकरारुल हसन, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ क्या नाम है उसका, उमर दराज गोंदल, देन देयर इज सफदर, देन देयर इज a lot of other anchors, हमजा तारड़, उसामा तारड़, ये वो लोग हैं जो अपने टाइम पे डिबेटर्स थे और दे एंडेड अप बीइंग एंकर्स। तो यार डिफरेंस तो क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। तो आई विल रियली रियली इनकरेज एवरी वन ऑफ यू टू टेक पार्ट इन सच कॉम्पिटिशंस। जो भी छोटे मोटे कॉम्पिटिशंस आते हैं, बड़े आते हैं, उसमें करो पार्टिसिपेट। एंड एक तो ये था कि आपकी जो है ना वो, आप ट्रैवल करते हो डिफरेंट सिटीज में, आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो एक तो बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म के लोगों से आपकी मुलाकात हो जाती है, बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, उससे आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो। फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी क्रिएटिविटी इनहांस हो जाती है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाता है। तो यू एंड अप बीइंग अ डिफरेंट पर्सन देन यू वर बिफोर गेटिंग इनटू ऑल दिस। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पेरेंट्स भी नॉर्मली डिस्करेज करते हैं कि यार स्टडी पे फोकस करो, ये करो, वो करो, बट स्टडीज के साथ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दैट इज व्हाई और जिसको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा है, वो फिर इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे लाइक आई एम लिटरली गेटिंग पेड फॉर इट, फॉर कोचिंग द किड्स इन बीकन हाउस। या इस तरह से आई वाज कोचिंग द किड्स इन फजैया इंटर स्कूल एज वेल। और मैंने जो है वो बाकी भी दो स्कूल्स में सेशन इस तरह से किए हुए हैं। तो वो स्कूल्स चूंकि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द किड्स, तो वो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक स्पेशल बंदा रख रहे हैं जो उनके बच्चों को आगे ट्रेन करेगा। यार वो इस इंपॉर्टेंट है, तो उस पे वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और जितना बड़े स्कूल्स देख लें, वो इस पे कर रहे हैं। फ्रोबेल्स, एलजीएस,
और हेड स्टार्ट और जितने भी आप देख लें, एवरी स्कूल हैज़ अ कोच, डिबेटिंग कोच। और ये आपको तो पता चलता है जब आप ये पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन्स में आते हो। तो इट्स अ गुड एक्टिविटी। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू शुड अवेल इट। और बाकी ये तो एक सेशन है जिसमें वी आर इंटरेक्टिंग। अदर देन दैट, इफ यू एवर नीड एनी ऑफ द असिस्टेंस, कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, दो मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल बहुत टाइट होता है और वक्त थोड़ा मुश्किल से मैनेज होता है, बट I can always assist you and I'll be really happy and glad कि यार अगर किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि I personally think यार whatever these public speaking and debates this has given to me, the way it has changed my life, तो मुझे लगता है कि it's my responsibility to pay back for the community as well. And I'm like मैं जिसे कहता है ना religiously इस चीज़ को प्रीच करता हूँ और इस चीज़ को आगे फैलाता हूँ। मुझे कोई से पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, मुझे से कोई मॉनेटरी बेनिफिट एज सच नहीं होता, बट मुझे लगता है कि यार दिस इज समथिंग आई शुड इफ आई हैव द नॉलेज ऑफ इट, तो मैं इसको आगे फैलाऊं भी लोगों तक। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू असिस्ट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग डिबेट्स। मुझे लगता है कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोगों में से किसी को भी हेल्प चाहिए होती है कभी भी, तो आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट। तो फिर अगर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं फुरकान, आप जैसे कि बता रहे हो, मैंने खैर वो एक देखा तो था क्वेश्चन यार, बट मैं आई कैन नॉट ओपन इट राइट नाउ। बट अदर देन दैट, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, नहीं तो मेरे ख्याल में वी कैन कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच जवेरिया। सर जो दो तीन क्वेश्चंस रह गए ना सर उस क्वेश्चनर में, they are related to the delivery part, so I think it's better we ठीक ask है, them over there. uh, right बिल्कुल now सही है, everything related to the writing or content material writing से so it's done. बिल्कुल सही है, परफेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू पीपल। आई होप आप लोगों को मैंने बोर नहीं किया, एंड आई एम सॉरी सिंस आई वाजंट होम, तो मैं उसको प्रॉपरली जो है वो नहीं कर सका। आई एम स्टिल ऑन माय वे राइट, लाइक आई जस्ट पार्क माय कार एट अ प्लेस, और मैं गाड़ी में बैठ के सेशन कर रहा हूँ। बट आई होप ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हुई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर द कॉमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इट वाज रियली रियली बहुत मुझे मजा आया इसको डिलीवर करके। बिफोर वी एंड द सेशन, मैं आप लोगों को टॉपिक्स दे देता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। बहुत जेनेरिक से टॉपिक हैं जिन पे बहुत ज्यादा होता भी है, बट आई वांट टू मेक इट इजी फॉर यू पीपल इनिशियली। तो आप उस पर कंटेंट वगैरह भी लिख लो, और अगले सेशन में हम उसको एवेलुएट भी कर सकते हैं, उस पर फर्दर डिस्कशन भी कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। आज क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा सा वो था, तो हम इसको जल्दी क्विकली एंड कर रहे हैं, दो इट्स नॉट क्विकली बट स्टिल। अच्छा जी, टॉपिक फॉर इंग्लिश इज, नोट इट डाउन, freedom with limitation is no freedom at all. Freedom with limitation is no freedom at all. ठीक है, ये हो गया उर्दू, सॉरी इंग्लिश के लिए टॉपिक। उर्दू के लिए हमारा टॉपिक होगा कि हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। ठीक है, ये हो गया उर्दू का। और इंग्लिश का, फ्रीडम विद लिमिटेशन इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। ठीक है। और इसके अंदर आई वुड एक्सपेक्ट, स्पेशली इन द इंग्लिश वाला जो स्क्रिप्ट है, कि आप हिस्टोरिकल एग्जांपल्स लेके आओ। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे लोगों को एनचेन किया था गुलामी की जंजीरों में। ठीक है, फिर जब आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इसने कैसे इंसानों को आजाद किया। मॉडर्न एरा में कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंसानों को जकड़ के रखी भी है, और उससे इंसान कैसे अपने आप को आजाद कर सकता है। ठीक है, तो मैं आई एम लुकिंग फॉर सम फिलोसफी, सम आपने इसको थोड़ा सा रिसर्च करना है, कुछ अनकॉमन एग्जांपल्स, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, इन सब चीजों के साथ आप लोगों ने आना है। और आपने किसी पर्सन, लाइक किसी पॉलिटिशियन और इन सब चीजों का डायरेक्टली नाम वगैरह नहीं लेना है। और इसके अलावा थोड़ा सा जो ह्यूमरस कैटेगरी है उसको मैं टच नहीं कर सकता। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज इन द ह्यूमरस कैटेगरी। जैसे मैंने बताया कि आई वंस ट्राइड, बट आई पैथेटिकली फेल्ड इन डिलीवरिंग और इन प्रिपेयरिंग अ ह्यूमरस स्पीच। और बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो है ही भी ह्यूमरस। लोगों को हंसाना वो सबसे मुश्किल काम होता है, और इन बेचारों से ज्यादती भी बहुत ज्यादा होती है इन कॉम्पिटिशन्स। ह्यूमरस को इतना ज्यादा जो है वो मार्क नहीं किया जाता, सीरियस को ज्यादा सीरियस लिया जाता है। बट उस पे सिंस आई डू नॉट हैव एनी ग्रिप, तो आई कुडंट डिस्कस दैट पर्टिकुलर यू नो लेकिन उस पर हम जेनेरिक डिस्कशन अगली सेशन में जरूर कर सकते हैं। एक जनरल उस पर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ, जो आप लोगों में से अगर कोई उस पर इंटरेस्टेड होगा तो उसको उसमें जरूर हेल्प मिलेगी। तो ये दो टॉपिक्स हैं, इस पे यू कैन प्रिपेयर द कंटेंट, और पे हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं फिर।
All right. Yes, So sir. thank you so much, everyone. Sir, Razak is asking for जी your Instagram. यार, इंस्टाग्राम आईडी थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा. लाइक आई एम नॉट अ Email. वेरी, मैं उसको बहुत ज़्यादा उसको यूज़ भी नहीं करता. बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन you can always ask for my WhatsApp number from your cabinet members. They must have it. तो आपको जब भी मुझसे कोई डिस्कशन करनी, कोई बात करनी, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो. लाइक मेरा इंस्टाग्राम इतना पब्लिक नहीं है. बाकी होता तो मैं जरूर आप लोगों को दे देता. एंड आई एम आल्सो नॉट वेरी मच यूजर ऑफ इंस्टाग्राम, तो दैट्स व्हाई मैं इसको So, नहीं करूंगा. sir, व्हाट्सएप आप लोग ले सकते हो if मेरा. you allow, we can add you to the group. हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, and if there are further questions, they can ask you there. श्योर, आप मुझे कर दो. बट वो ये कि अगर आप लोगों का वो पर्सनल ग्रुप है जिसमें आप लोगों की पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, नहीं तो नहीं वो सर, एक अलग this चीज है. बट activity हाँ ठीक है, आई if डोंट you have, माइंड इट. आप if you कर लो don't मुझे mind. ऐड. इट्स ओके. हाँ सही है. आई वोंट माइंड इट. मतलब अगर आप लोगों के लिए इशू कंसर्न्स नहीं है तो इट्स ओके. आई कैन बी पार्ट ऑफ इट. Sure, sir. Sarah, you can take over. Thank you so much, sir, for sharing your expertise and insights with us today. It was truly an enlightening session. Um, I believe that everyone had a good time as well, and everyone learned a lot. आज मेरी बस एक रिक्वेस्ट है सबसे कि the second session जो कि I think probably we're gonna have on the 25th of July. I request all of you to please participate actively in that, and inshallah it will be a good session. I think that's it from our side. Again, अगर आपकी कुछ questions हैं, you can always reach out to Furqan and Laiba regarding the writing part. And I think that's it from our side. Thank you so much for joining us. And Allah Hafiz. Good night. Sarah, we have the President Debates Club with us, Gulmeher Baji. Yes, If you want to Gulmeher. if you want to say something or have some words for us. Gulmeher. Hello. I think that's it. Hello, am I Yeah, sure. audible? Yeah, you are. Yes. Okay, sorry. We're actually important. In fact, everyone who is here, we can't agree more on the importance of crafting a compelling speech. हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं एक अच्छी speech की कैसे जाती है, अपने बोलने किस तरह, which is important, और जिस पे हमारा second session होगा. लेकिन I don't think so कि अभी तक even DC के उसमें भी, DC की history में भी कभी इस पे बात हुई हो कि how do you craft a compelling speech. And I'm using the word craft here because it's not only about writing. It's actually an art to write a good speech in declamations. And it's not a good debate. It's not just about speaking, as we learned, but also about writing. So thank you so much, Furqan and Laiba, for understanding the importance of it, for realizing the importance of it. Thank you so much to our speaker who spoke so well. It was a treat, sir. And thank you so much to all the people who participated in question and answering session and जिसने भी participate किया. Thank you so much. We all look forward to see you guys participating in future too, on campus sessions maybe or competitions maybe, inshallah. And yes, we will have mock sessions. किसी ने बात की थी कि first time speakers के लिए tips. So we will have mock sessions. हमारा पूरा public speaking week होगा एक, तो उसमें सबको chance मिलेगा. And that's your chance to grab this opportunity or make sure you refine your skills. And it's all about just keep participating. And that's it. That was it from my side. Thank you again, Furqan, and congratulations, Laiba. Thank you so much, Dr. Azhar Iqbal, for joining us today. Guys, this is it. We are calling it a day. Allah Hafiz, take care and have a good dinner. Allah Hafiz, everyone.